Good morning, everyone. In previous class, we have seen the reflection at a concave spherical surface when the object was in rarer medium and then image was formed. Alright, today we are going to study one particular case. It is reflection at a concave spherical surface when object lies in the denser medium. So, here the surface which is concave towards the denser side, मतलब ग्लास कांच जिस चीज़ का बना है उधर ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कांच के तरफ रखा हुआ है. ध्यान दीजिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट. ए बी, हियर इट इज कनकेव. कनकेव तभी होता है जब कांच में अंदर की ओर हो, बट ये कनकेव ही बना. ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स नहीं है ये. इसको आप अपनी तरफ इधर मत समझिएगा, ये इस तरफ से आप देख रहे हैं, इस तरफ से. बट ऑब्जेक्ट, फर्स्टली कंसिडर द प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, कंसिडर this is our pole P. All right, now the object is placed in this side where the glass is lying, means this one is denser, having refractive index mu 2, rarer refractive index mu 1. याद रखिएगा. Consider this object. Here it is a point object O. When the ray is moving like this, all right, because curvature is this side, इधर curved है, so center of curvature भी किधर होगा? ये यहाँ पे है. ठीक है, तो सबसे पहले make a normal which is passing through the incident point, through the point at which light is incident or ray is incident. So I have made this normal. All right, this is normal. Now this ray will move towards the normal or away the normal. This is a question. ये किधर मुड़ेगी? Because it is denser. ये जो portion है हमारा, this is denser medium. All right, so ray will move away from the normal because it is moving from denser to rarer. तो ये मुड़ गई, ये देखो ऐसे इधर. All right, so when we extend this ray backwards, हम इस ray को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, then we will get this ray is cutting here. Consider one more ray moving through the pole. It will move forwards. ये आगे चलती जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पे अगर हम ऑब्जेक्ट से चल रहे हैं तो ये कहाँ पे कट कर रही है? यहीं पे ना. So it is the image point. Consider some detailing to this figure. Object distance from the pole U, image distance from the pole V, center of curvature and the pole, this distance is R from P to C. This object, the angle which is made by the incident ray to the principal axis, it is alpha. This is beta, this angle is gamma, incidence angle is this one I, refraction angle is this one R. All right, so these are our formations. Anything left? No. So firstly consider this point as N and make perpendicular towards the principal axis M. हर बार यही तो कर रहे हैं. Now apply the same method. सभी रेस को हमको पैरेलैक्सियल मानना है, पैरेक्सियल. फर्स्टली कंसिडर ट्राइंगल NOC. See, where is triangle NOC? Triangle
एन ओ सी। गामा और अल्फा इंटीरियर एंगल है, आई एक्सटीरियर एंगल है, सो आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। एंड सिमिलरली ट्रायंगल NIC में जब आप देखेंगे यू विल गेट R इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। सो दीज आर वन सेट ऑफ इक्वेशंस। अगेन वैसे ही प्रोसीजर, फिर वही सारा चीज, बिकॉज ऑफ स्मॉल रेज स्मॉल एंगल्स tan beta, because we have considered the paraxial rays, I am again taking this as paraxial ray। ध्यान दीजिएगा ये जब अपर्चर छोटा होता है सो एंड दीज रेज आर पैरेलैक्सियल, तो ये एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, तो अल्फा की जगह साइन अल्फा या साइन अल्फा की जगह अल्फा रख सकते हैं, अल्फा की जगह tan अल्फा या अल्फा की जगह केवल अल्फा यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं लगातार इस टॉपिक में। tan गामा, गामा को tan गामा लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें अल्फा, देखिए पहले हमको क्या इस्तेमाल करना है, एक आई आर को अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में निकालना है। फिर मतलब जब हम अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में निकालेंगे तो फिर हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए। और आई आर को क्यों निकालना है, बिकॉज वी वांट टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ पुट दीज वैल्यूज in trigonometric form for alpha, consider triangle NMO, तो NM upon MO है ना, tan अल्फा की जगह रख दो NM upon MO। for tan बीटा, for बीटा और tan बीटा एक ही चीज है, NMI, NM upon MI। ठीक है, सिमिलरली यू कैन पुट NM अपॉन MC। नाउ पुट द approximation as you will write as we have considered very small aperture, so M and P are very close। M और P बहुत करीब हैं, ठीक है, तो M और P अगर करीब हैं देन वी कैन पुट NM अपॉन PO, इसको MO की जगह PO, NM upon PI, NM upon PC। Now next is apply Snell's law। mu1 sin I is equals to mu2 sin R, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है, जरा देखा जाए क्या। ये तो हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, यहाँ इंसिडेंट रे mu2 से निकल रही है और mu1 को जा रही है, यानी निकल किधर से रही है, इधर से, और किधर को जाती है, इधर। सो इसको तो ये हमारा नियम है, बट इन आवर केस रे is moving from mu2 to mu1, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, सो स्नेल्स लॉ विल बी साइन I by sin R is equals to mu1 by mu2, जिसमें जा रही है और जिसमें से आ रही है, ठीक है। तो यहां पे अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, mu2 sin I, mu1 sin R। all right, now as I and R is very small,
सो साइन आई इक्विवेलेंट टू आई, और इसी तरह साइन आर इज इक्वल टू आर. सो म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर. वी विल यूज इट. म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर. पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर. म्यू टू आई की जगह हमने निकाला था अल्फा प्लस गामा, आर की जगह निकाला था बीटा प्लस गामा. पुट दीज वैल्यूज, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, विल गेट एनएम ओपी, एनएम पीसी, म्यू वन, this time it is nm ip plus this time it is nm pc. All right, so nm is cancelled out. We can write mu 2 1 upon op 1 upon pc, mu 1 1 upon ip 1 upon pc. ठीक है. So when shifted from here to here, IP वाला term and PC from here to here, so we'll get mu 2 या mu 1 upon IP, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, प्लस mu 2 upon OP is equals to mu 1 माइनस mu 2 upon PC. देख रहे हैं चेंज आया है थोड़ा थोड़ा पिछले जो एक्सप्रेशंस आपने पढ़े होंगे 2 क्लासेस में उससे. नाउ एज द ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, सो OP इज इक्वल्स टू माइनस यू. इमेज भी बनी थी बाएं तरफ तो IP इज इक्वल्स टू माइनस वी, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में था तो PC विल बी प्लस आर, क्योंकि कर्व ऐसे था, इस तरह से ऐसा बना था ना, ये इस तरह. तो पुट दीज वैल्यूज, माइनस म्यू 1 अपॉन IP किस में है, माइनस वी माइनस यू आर प्लस में. चेंज करो साइन वाइन को थोड़ा, म्यू 2 को इधर ले जाओ, म्यू 1 को इधर, तो ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर. लेकिन यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस कट चुका था, अभी इधर वाला इधर माइनस आया है तो ये इधर हो गया. तो म्यू 1 बाई, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, म्यू 2 बाई OP, देखो यहाँ म्यू 2 बाई OP है, ये म्यू 2 नहीं म्यू 1 बाई OP ही है. ठीक है, म्यू 1 बाई OP IP प्लस म्यू 2 बाई OP, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई PC. यहाँ म्यू 1 बाई माइनस वी, म्यू 2 बाई माइनस यू, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर. ये बन जाएगा म्यू 2 बाई यू माइनस में है, जब ये वाला माइनस आएगा तो ये, अभी इसको मैं यहीं पे माइनस रखता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगी. म्यू 1 बाई वी प्लस में ले लें और ये वाला हो गया माइनस में म्यू 2 बाई यू. अब इसको जो हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसी टाइप में लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी. म्यू 1 बाई वी माइनस म्यू 2 बाई यू इज इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर ही रहने देते हैं, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर. यही हमारा एक्सप्रेशन है जो इस पर्टिकुलर केस में आता है. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे लास्ट केस की. नाउ टुडे वी विल सी लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो देखिए होता क्या है, अगर किसी लेंस बनाने वाले को, जो चश्मे की दुकान पे लेंस बनाता है या फिर जो फैक्ट्रीज में लेंस बनता है, उनको एक पर्टिकुलर पावर का चश्मा बनाना है, तो उन्हें दोनों साइड लेंस का कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पावर का लेंस बना पाए. ठीक है, तो उसके लिए ही ये फॉर्मूला बनाया गया. यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम एक लेंस बनाने वाला खुद से डिसाइड करता है. रफली समझें तो जैसे ये है
ये एक चांदा है, एक प्रोटेक्टर है, तो ये कितना रेडियस इसकी है, इट विल डिसाइडेड बाई हाउ मच इट इज ग्राइंडेड, कैसे ग्राउंड किया गया। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा तराश दूं तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, और तराश दूं और बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा मोटा कर दूं तो रेडियस घट जाएगी। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना घिसना है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले से डिसाइड होता है कि कितने फोकल लेंथ का हमको लेंस चाहिए, ठीक है। तो strictly speaking, this formula relates the focal length of a lens to the refractive index of the lens material and the radii of curvature of its two surfaces, ठीक है। So firstly consider, मान लीजिए हमको एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, इस टाइप का। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं, इस वाले को रफ समझ के छोड़ दीजिए। ठीक है। नाउ मेक अ प्रिंसिपल एक्सिस, alright, so this is our principal axis. Consider one point object from here. ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक लेंस है। मान लीजिए यहाँ से एक रे इस सरफेस के यहाँ तक, इस पॉइंट तक पर्टिकुलर जाती है, ठीक है, यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हैं ये रे यहाँ जाएगी, लेकिन होता क्या है, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये एक नॉर्मल है। देखो ये एक कर्वेचर है पहला वाला, पहले वाले कर्वेचर का मैं एक रफ आइडिया बना दूं। पहले वाला कर्वेचर जो एक बड़े से सर्किल का पार्ट रहा होगा, किसी इतने बड़े सर्किल का पार्ट रहा होगा, है ना, ये ऐसे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर रहा होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाले के लिए, बाएं वाली सरफेस के लिए, ठीक है। और ये वाला जो है, ये कर्वेचर जो बना इस साइड में, है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये एक अलग सरफेस, ये एक अलग सरफेस। अब यहाँ पे, यहाँ से हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनाएंगे, तो ये इसका नॉर्मल होगा। ये ऐसे, ठीक है। अब आपको पता है कि रेयर से डेंसर जाने में नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, तो ये रे ध्यान से देखिए, देखिएगा, ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, दिखा प्रॉपर। अब इसके बाद यहां पे, अब ये दूसरे सरफेस पे पहुंच गई, दूसरे सरफेस पे यहां पे फिर से एक नॉर्मल बनेगा, इसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब यहां से चूंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो रे नॉर्मल से दूर हटेगी, है ना, हटेगी ना, तो नॉर्मल से दूर हट गई। अगर मान लीजिए ना हटी होती, तब ये रे सीधे कहाँ चली जा रही थी, ये देखो ये चली जा रही है कहीं, ये आगे जाके ये कहीं आगे हिट करेगी। अभी मैं स्क्रीन छोटी करूंगा तो पता चलेगा, यहाँ तक हट गई। लेकिन अभी ये ऐसा, जब ये एक्स्ट्रा मुड़ी तो इसने नॉर्मल से अवे मोड़ दिया, ऐसे ये यहाँ कट कर गई, ठीक है, ये ठीक है। तो ये फाइनली बाहर यहां निकली, तो फाइनली यहां पे आई है एक रे। अब मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसको, देखिए एक रे जो यहां से सीधे चली, वो बिना किसी रुकावट के सीधे चलती चली गई, ऐसे चलती चली गई। यानी अगर मैं इस मुड़ने से पहले केवल इस वाले सरफेस के
जो जिसके कारण इधर ये सीधे अगर ये दूसरे सरफेस से ना रिफ्रैक्ट हुई होती तो ये चली जा रही थी, ठीक है, और कहाँ जाके मिल रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जाके मिल रही थी। अब अगर सोचिए प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ मिल रही है, पहले अगर पहले सरफेस से केवल माना जाए तो पहले सरफेस से एक रे ये निकली जो ऐसे निकल के सीधे जा रही है, वो यहाँ टकराई, और पहले सरफेस से ही एक रे ये सीधी चली। अभी दूसरे सरफेस वाले को मैंने नहीं कंसीडर किया, पहले वाले, तो यानी पहले बीच में अगर ये दूसरा सरफेस ना रहा होता तो एक इमेज बन रही होती आई डैश, इसको नाम दे दिया, ये एक इंटरमीडिएट इमेज कहलाती। इसको हम नाम देते हैं I1। क्या नाम दे रहे हैं? I1। लेकिन दूसरे सरफेस से होने के बाद ये फिर से मुड़ गई तो यहाँ एक नई इमेज बन गई, क्योंकि ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, तो ये इमेज परमानेंट वाली बन गई, जो फाइनल इमेज हमारी बनी, ये आई। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने दो नॉर्मल्स भी बनाए हुए हैं, ये ब्लैक डॉटेड वाले जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना μ2। अब हम कुछ डिटेलिंग जल्दी से लिख लेते हैं, μ2, ठीक है। ये बाहर एयर है तो μ1 दोनों साइड है, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे जहाँ से इंसिडेंट हो रहा है इसको m नाम दे दें, यहाँ से जहाँ हो रहा है इसको n नाम दे दें। ऑलराइट, नाउ दी डिस्टेंसेस। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ये ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंसेस नापी जाएंगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पहला वाला है ना, ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इट विल बी r2, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी r1, ठीक है। ये हमारा वो प्लेन है जहाँ से एक्चुअल रिफ्रैक्शन हम मान सकते हैं हो रहा है, पर हो तो असल में 2 बार रहा है, पर रिफ्रैक्शन हम मान सकते हैं कि 20 से हो रहा है, ठीक है। और वहीं से सारे डिस्टेंसेस वी आर कंसिडरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन u, वो तो कभी नहीं बदलेगी। इमेज, पहली वाली जो इमेज बनी, अगर ये दूसरा सरफेस ना रहा होता तो ये होती यहाँ से पूरा यहाँ तक, v1 नाम दे दिया। लेकिन चूंकि दूसरा सरफेस था तो यहाँ से यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली v ओनली, इट इज द फाइनल इमेज डिस्टेंस। अच्छा ये बताइए, दूसरी वाली जो इमेज बन रही है उसके पहले एक इमेज और बन चुकी है, कौन सी? ये वाली, फिर ये दूसरी बन रही है, यानी दूसरी वाली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ये इंटरमीडिएट। दूसरी वाली इमेज के लिए, फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट, this will work as the object for this image and this will work as the object for this image only। ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, इस वाली इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जल्दी से हम इस एक्सप्रेशंस को दोनों को लिखते हैं। पहले फर्स्ट वाली रे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v1 पॉजिटिव में, u निगेटिव में, और r कौन सा लेंगे? पहले वाले सरफेस से हो रहा है ना, तो r इधर वाला यानी पॉजिटिव वाला r। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, जो हमने पीछे लेंस फॉर्मूला रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से पढ़ा है, तो ये कैसा है? कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन विल गेट μ2, आप देख लीजिएगा, सीधे मैं वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, v यानी इमेज डिस्टेंस, v की जगह क्या लिखेंगे? v1 जो कि पॉजिटिव में, माइनस μ2। अब देखो ये जा कहां से कहां रही है? μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u। चूंकि देखो इसमें हमने ये जो डेराइव किया था एक्सप्रेशन, ये हमने सारे वैल्यूज रखने के बाद डेराइव किया था। जब हम कर रहे थे तो हमने सारे साइन कन्वेंशन रखने के बाद किया था। इट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ r कौन सा यूज करेंगे? r1। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सप्रेशन पहले सरफेस के लिए। अब दूसरा सरफेस क्या है? दूसरा सरफेस एक कनकेव सरफेस है, जो हमने अभी आखिरी में पढ़ा, अभी इसी वीडियो में, जिसमें लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो ये कनकेव सरफेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे यही एक्सप्रेशन कन्वेक्स, देखो अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रखे हो रे एरर में, अब ये इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन अब इधर इस ऑब्जेक्ट से रे ऐसे चलती हुई मानी जाएगी, यानी एक कन्वेक्स सरफेस से ऐसे रे आ रही है और इधर ही उसकी इमेज बन जा रही है,
ऐसे आ रही है और इधर ही इमेज बन जा रही है, यानी एक कन्वेक्स सरफेस, रियल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर से लिख देंगे दूसरे सरफेस के लिए। तो दूसरी इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी फॉर सेकेंड सरफेस। पहली चीज तो जो रे जा रही है वो μ1 से μ2 में ही जा रही है कि μ2 से μ1 में जा रही है। इस बार ऑब्जेक्ट इधर है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना, और इमेज यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार क्या है, v1 है, और इमेज डिस्टेंस क्या है, v है केवल, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ये बन जाएगा, देखिए μ1 अपॉन v, μ2 अपॉन v1, जहां u होना चाहिए था वहां v1, इट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2। लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो मैंने डिराइव किया था उसको जरा देखिएगा, आपको दिख जाएगा। इसके पहले मतलब लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ठीक पहले μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो असल में यहाँ पे क्या लिया है, v1, यानी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है, इंटरमीडिएट इमेज जहाँ बनी है। नाउ ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो देखिए सामने है, वहाँ था μ1, ये वाले को लिख लेते हैं μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1। अब मैं पिछले वाले को लिख रहा हूँ राइट साइड में, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u, ठीक है। और इट इज इक्वल्स टू नीचे वाले का ये μ1 माइनस μ2 बाई r2, और पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख दूँ μ2 माइनस μ1 बाई r1। अब देखिए ये दोनों कट जा रहा है ना, तो ये बन जाएगा μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u, इट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 दोनों में से कॉमन आ सकता है, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, यहाँ एक माइनस साइन बच जाएगा, तो ये जो आएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। इसमें देखो μ1 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, इस μ1 को जो कॉमन लिया था यहाँ डिवाइड कर दो, μ1 ये एक एक्सप्रेशन, एंड दिस बिकम्स 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ऑलराइट, सो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल्स टू 1 बाई f ना, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह दें कि ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पे रख दें तो इमेज कहाँ बनती है, f पे बनती है, फोकस पे। व्हेन u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, v इज इक्वल्स टू f, रख दो इसी पर्टिकुलर केस को, है ना। तो इस कंडीशन को रखते हुए ये क्या बन जाएगा, 1 बाई f, इस पूरे में इंफिनिटी रखोगे, ये 0, ये f। इट इज, या तो आप ऐसे फॉर्मूला भी जानते हो, लेंस का फॉर्मूला यही होता है, यही रख दो। इट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, ये एक्सप्रेशन, एंड इट इज 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बाई f इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 माइनस 1, एंड इट इज 1 बाई r1 minus 1 by r2, and this is the expression called as lens makers formula। अगर आपको दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, यानी एयर का और जिस ग्लास को आप यूज कर रहे हैं उसका, और उसके अलावा कितना r1 r2 तराशना है, तो आप उस पर्टिकुलर फोकल लेंथ को अचीव कर सकते हैं जिसका आपको लेंस चाहिए। यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी लेंस मेकर फॉर्मूला में एयर रख दिया जाए, इफ μ1 इक्वल्स टू एयर, μ1 इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, और दूसरे वाले मीडियम को μ2 को केवल म्यू नाम दे दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और जनरली यही वाला हमारा प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक डबल कन्वेक्स लेंस के लिए, डबल कनकेव लेंस के लिए आप खुद से घर में ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।